वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया अति उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति त्वयि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै We are studying Canto 1, Chapter 14, Text 39. Kachittenamyam tata prasthateja vibhasme लब्धा मनोविज्ञातः किं वा तथा चिरोषितः कचित्तेनमयं तथा भ्रष्टातेज विभासि मे लब्धा मनोविज्ञातः किं वा तथा चिरोषितः कचित्तेनमयं तथा प्रियस्तातेज विभासि मे लब्धा मनोविज्ञातः किं वा तथा चिरोषितः दीपिका माता जी श्लोक पढ़ो कचित्तेनम्यं तथा भ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानो वजन्ता किं वा तच्चिरोषिता तो पढ़ो कच्चित्तेनामयं तथा विभासि मे अलब्धमानो वज्नाता किं वा तथा शिरोषिता After you read further. Translation. My brother Arjuna, please tell me whether your health is all right. You appear to have lost your bodily luster. This is due to others disrespecting and neglecting you because of your long stay at Dwarka. Purport. From all angles of vision, the Maharaj inquired from Arjuna about the welfare of Dwarka. But he concluded at the end that as long as Lord Krishna himself was there, nothing inauspicious could happen. But at the same time, Arjuna appeared to be bereft of his bodily luster, and thus the king inquired of his personal welfare and asked so many vital questions. कचिन् विभायितो भावे शब्ददिभ्येन मङ्गले नादार्थं मुक्तं मतिभ्या आशयत् प्रतिश्रुतम् अस्तु पढ़ो Translation. Has someone addressed you with unfriendly words or threatened you? Could you not give charity to one who asked, or could you not keep your promise to someone? Purport. A kshatriya or a rich man is sometimes visited by a person who are in need of money. When they are asked for a donation, it is the duty of possessor of wealth to give in charity in consideration of the person, place, and time. If Kshatriya or a rich man fails to comply with this obligation, he must be very sorry for the discrepancy. Similarly, one should not fail to keep his promise to give in charity. These discrepancies are sometimes causes of despondency, and thus falling, a person becomes subjected to criticism, which might also be cause of Arjuna's plight. चित्तं ब्राह्मणं बलं गम्भीरं योगिनं श्रियं शरणाभूषितं सत्त्वं नाथक्षी शरणागदा पढ़ो Translation. You are always the protector of deserving living beings.
such as Brahmanas, children, cows, women, and the diseased. Could you not give them protection when they approach you for shelter? Purport. The Brahmanas were always engaged in researching knowledge for the society's welfare work, both materially and spiritually, deserve the protection of king in all respects. Similarly, the children of a state, the cow, the diseased person, the woman, and the old man specifically inquire the protection of state or the Kshatriya king. If such living beings do not get protection by Kshatriya or the royal orders or by state, it is certainly shameful for the Kshatriya or the state. If such thing had actually happened to Arjuna, Maharaj Yudhishthir was anxious to know about these discrepancies. युधिष्ठिर महाराज ये सवाल अर्जुन से पूछ रहे हैं। अर्जुन अभी वापस आ चुके हैं द्वारका में। तो was asking क्या तुम चैरिटी दान पुण्य कर पा रहे हो, तुम्हारा बॉडी लश्कर क्यों चला गया है। बीइंग अ क्षत्रिय, आप क्षत्रिय हो तो आपको बच्चों की, गाय की, व्यक्ति विशेष, स्त्रियों, बूढ़े व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। क्या तुम नहीं कर पा रहे हो, व्हाट इज द मैटर। तो हमारा युधिष्ठिर बहुत एंशियस होते हैं ये सब पूछ के। खचित्वं नागमो गम्यं गम्यं वसत्कृतं श्रियं पराजितो वटा भाव नोत्तमे नाशमे पति। तो बोलो। Have you contacted a woman of impeachable character? Or have you not properly treated a deserving woman? Or have you been defeated on the way by someone who is inferior or equal to you? Purport. It appears from this verse that during the time of Pandavas, free contact between man and woman was allowed in certain conditions only. Higher caste men, namely the Brahmanas and Kshatriyas, could accept a woman of Vaishyas or the Shudra community. But a man from a lower caste could not contact a woman for higher caste. Even a Kshatriya could not contact a woman of the Brahmana caste. The wife of the Brahmana is considered one of the seven mothers, namely one's own mother, the wife of the spiritual master or the teacher, the wife of Brahmana, the wife of king, the cow, the nurse, and the earth. Each contact between man and woman was known as Uttama and Adhama. Contact of Brahmana with a Kshatriya woman is Uttama, but the contact of Kshatriya with a Brahmana woman is Adhama and therefore condemned. A woman approaching a man for a contact should never be refused, but at the same time, discretion, as above mentioned, may also be considered. Bhima was approached by Hidimbi from a community lower than a Shudra, and Yayati refused to marry the daughter of Sukracharya because the Sukracharya being a Brahmana. Vyasadeva, a Brahmana, was called to beget Pandu and Dhritarashtra. Satyavati belonged to the family of fishermen, but Parasa, the great Brahmana, begot in her Vyasadeva. So there are so many examples of contact with women, but in all cases the contacts were not abominable nor were the result of such contacts bad. Contact between a man and woman is natural, but that who also must be carried out under regulatory principles so that social consecrations may not be disturbed or unwanted worthless population be increased for the unrest of the world. हरे कृष्णा। Yes, Mataji. हरे आप नीचे करो मुझे दिख नहीं रहा. हाँ. It is abominable for the Kshatriya to be defeated by one who is inferior in strength or equal in strength. If one is defeated at all, he should be defeated by some superior power. Arjuna was defeated by Bhishma Deva and Lord Krishna saved him from the danger. This was not an insult for Arjuna because Bhishma Deva was far superior to Arjuna in all the ways, namely age, respect, and strength. But Karna was equal to Arjuna, and therefore Arjuna was in a crisis when fighting with Karna. It was felt by Arjuna, and therefore Karna was killed even by the crooked
crooked means. Such as engage, such are the engagements of the Kshatriyas in Maharaj Yudhishthira inquired from his brother whether anything undesirable happened on the way home from Dwarka. यहाँ पे क्या बताया गया है? सो युधिष्ठिर महाराज कई प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन को कि उसका बॉडी लश्चर क्यों चला गया, क्यों वो उदास है, क्या हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या तुमने कोई ऐसी स्त्री के संपर्क में तो नहीं आगे जो कि लो करेक्टर की हो, या किसी और या तुमने किसी डिजर्विंग विमेन को अच्छे से ट्रीट ना किया हो, और आप किसी से रास्ते में हार चुके हो जो तुम्हारे बराबर हो या तुमसे छोटा हो, तो कहीं उससे हार तो नहीं गए। तो यहाँ पे लिखा है जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में कि पांडवों के समय में देर इज लाइक कि जो स्त्री और पुरुष में जो फ्री संपर्क होता था, फ्री कांटेक्ट, वो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस इट वाज अलाउड। द हायर कास्ट में जैसे जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय हैं, वो स्त्रियों को जैसे वैश्य शूद्र कम्युनिटी की हैं, उनको वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट जो लो क्लास का व्यक्ति है वो हाई कास्ट की लड़की के साथ संपर्क नहीं कर सकता। इवन अ क्षत्रिय कुड नॉट कॉन्टेक्ट अ वीमेन ऑफ द ब्राह्मण कास्ट, और जो क्षत्रिय वो ब्राह्मण क्लास की स्त्री के साथ भी संपर्क नहीं कर सकता। द वाइफ ऑफ अ ब्राह्मण इज कंसिडर्ड वन ऑफ द सेवन मदर्स, क्योंकि जो ब्राह्मण पत्नी है वो 7 माताओं में मानी जाती है। तो इसलिए जो क्षत्रिय है, जो नीच जात का व्यक्ति है, वो उच्च जाति के अपने से ऊंची जाति की स्त्री का संपर्क नहीं कर सकता। जैसे जो ब्राह्मण की जो उनकी कोई बेटी बहन है तो वो माता के समान है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कि 7 माताओं के हिसाब से। अगर जो क्षत्रिय वर कॉन्टेक्टिंग विद द ब्राह्मण कास्ट, दैट्स अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट गुड। सच कॉन्टेक्ट बिटवीन मेन एंड वीमेन वाज नोन एज उत्तम एंड अधमा। तो अगर हाई क्लास लड़का है, लो क्लास लड़के, इट्स ओके, बराबरी भी ओके है। और कॉन्टेक्ट ऑफ ब्राह्मण विद क्षत्रिय विमेन इज उत्तम, और द कॉन्टेक्ट ऑफ क्षत्रिय विद ब्राह्मण विमेन इज अधमा, उसको लो क्लास माना जाता है, देयरफॉर उसको मना किया जाता है। Women approaching a man for contact should never be refused, but at the same time discretion as above mentioned may also be considered. कोई स्त्री पुरुष के पास जा रही है कांटेक्ट के लिए, मना नहीं करना चाहिए, बशर्ते ऊपर वाली कंडीशंस फॉलो होती हो। ठीक है, हाई क्लास की लड़की और लो क्लास का लड़का नहीं चलेगा। So Bhima was approached by Hidambi from a community lower than Shudras, and Yayati refused to marry the daughter of Shukracharya because of Shukracharya's being a Brahmana. अब भीम को हिडम्बी थी जो, हाँ, वो तो सबसे नीच जात की थी, इट्स ओके। अगर ये याति महाराज शुक्राचार्य की पुत्री जो ब्राह्मण थी और ये याति महाराज क्षत्रिय थे, उन्होंने मना कर दिया था। तो व्यासदेव ब्राह्मण है, was called to beget पांडु and धृतराष्ट्र, क्योंकि व्यासदेव जी ब्राह्मण है ना। तो और जो पत्नी थी वो कौन थी, विचित्र वीर की पत्नी, वो क्षत्रिय परिवार से थी, नीची जाति की, तो चलता है। सत्यवती belonged to a family of fishermen even, but Parashara, a great Brahmana, begotten her Vyasadeva. That's fine. So there are so many examples of contact with women, but in all cases, contacts were not abominable, nor were the result of such contact was bad. Contact between men and women is natural, but that also must be carried out under regulative principles so that social creation may not be disturbed or unwanted worthless population be increased for the unrest of world. देखिए स्त्री पुरुष का संपर्क स्वाभाविक है, आजकल तो कलयुग है, तो बहुत स्वाभाविक है, अगर नियम पालनों के अनुसार होना चाहिए, रेगुलर प्रिंसिपल्स के अनुसार, ताकि अनवांटेड प्रोजेनी पॉपुलेशन ना आए। ठीक है, it is abominable for a Kshatriya to be defeated by one who is inferior in strength or equal in strength. और देखो क्षत्रिय के लिए abominable है अगर वो अपने से कम या बराबरी वाले से हार जाए। If one is defeated at all, he should be defeated by some superior. अगर हार नहीं है तो किसी ऊपर वाले से हारना चाहिए, तब ठीक है। ठीक है, अर्जुन was defeated by Bhishma. Lord Krishna saved him from the danger. This was not an insult to Arjuna because Bhishma Deva was superior to Arjuna. अभी अर्जुन तो भीष्म से हारे थे, चलता है क्योंकि भीष्म बड़े थे। सो वो कर्ण अर्जुन के बराबर थे। अगर अर्जुन
करण से हार जाते तब वो थोड़ी गड़बड़ की बात थी. तो Sachar, it was felt by Arjuna, therefore Karna was killed even by crooked means. Sachar, the engagement of Kshatriya and Maharaj Yudhishthira inquired from his brother whether anything undesirable happened on the way from Dwarka. तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे कि ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई तुम्हारे साथ, बताओ मुझे. अपिसित पार्य भुक्तस्त्वं संभेजयन् वृथा बालकान् जुगुपशितं कर्म किंचित् कृत्वा नायद अक्षमम्. आस्था पढ़ो. Translation. Have you not taken care of old men and boys who deserve to dine with you? Have you left them and taken your meals alone? Have you committed some unpardonable mistake which is considered to be abominable? Purport. It is the duty of householder to feed first of all the children, the old members of the family, the brahmanas, and the invalids. Beside that, an idle householder is required to call for any unknown hungry man to come and dine before to himself goes to take his meals. He is required to call for such hungry men thrice on the road. The neglect of this prescribed duty of a householder, especially in the matter of old men and children, is unpardonable. क्या बोल रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज दोबारा पूछ रहे हैं, क्या तुमने किसी बूढ़े व्यक्ति या बच्चों का उनको उनका ध्यान तो नहीं ऐसे किया कि उनको ध्यान ना दिया हो, या तुमने उनको ऐसे ही छोड़ दिया हो अकेले? हाँ, या तुमने ऐसा कोई अपराध कर दिया जो कि अबॉमिनेबल हो, हाँ, जिसको क्षमा न किया जा सकता हो. तो यहाँ तात्पर्य में लिखा है कि एक गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि बच्चों, बूढ़ों या ब्राह्मणों, जो कि इनवैलिड लोग हैं, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट, केयर करना, भोजन कराना. ठीक है. बिसाइड्स दैट एन आइडियल हाउस होल्डर, तो हाउस होल्डर को तो ऐसा भी है कि जब वो खाना बनाता है तो उसको बाहर जाके गली में आवाज लगाने की, कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो आओ प्रसाद पालो. सो ही इज रिक्वायर्ड टू कॉल फॉर सच ए हंग्री मैन थ्राइस ऑन द रोड. 3 बार उसको आवाज लगानी चाहिए बाहर. तो ऐसा निग्लेक्ट होना हाउस होल्डर के हिसाब से कि क्या है, अबॉमिनेबल है. ये इसको माफ नहीं किया जा सकता. उसको ऐसा केयर करना चाहिए बूढ़ों को, बच्चों को. तो ये पूछ रहे हैं अर्जुन को, हमारा युधिष्ठिर. कचित प्रेतात्मनाथा ध्यानात्मा बंधुना संन्यास्मे दो नित्यम माया से न्यातनो. आस्था पढ़ो. Translation. Or or is it that you are feeling empty for all time because you might have lost your most intimate friend, Lord Krishna? Oh, my brother Arjuna, I can think of no other reason for you becoming so dejected. Purport. All the inquisitiveness of Maharaj Yudhishthira about the world situation was already conjec- conjectured by Maharaj Yudhishthira on the basis of Lord Krishna's disappearance from the vision of the world, and this was now disclosed by him because of the acute dejection of Arjuna, which could not have been possible otherwise. So, even though he is doubtful about it, he was obliged to inquire frankly from Arjuna on the basis of Sri Narada's indications. Thus ends up with the Bhaktivedanta purport of first canto, 14th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled The Disappearance of Lord Krishna. क्या पूछ रहे हैं कि और is it that you are feeling empty for all time because you might have lost your most intimate friend Krishna? Finally, युधिष्ठिर महाराज उसी सवाल पे आगे जो वो पूछना चाहते थे. उन्होंने पहले चीजें तो ऐसे घुमा फिरा के पूछी, अच्छा ये तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया. फाइनली पूछ ही लिया, क्या तुम इतना जो खालीपन महसूस कर रहे हो इसलिए तो नहीं है कि तुम अपने भगवान, अपने मित्र कृष्ण को खो चुके हो? वो मेरे भाई अर्जुन, मेरे को और कोई कारण नहीं लग रहा तुम्हारे डिजेक्शन का, कृपया मुझे बताओ. तो कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का जो इंक्विजिटिवनेस था about the bold situation was already conjectured by Maharaj Yudhishthira on the basis of Lord Krishna's disappearance.
from the vision of the world. This was now disclosed by him because of the acute dejection of Arjuna. युधिष्ठिर महाराज इतने सारे वो जो देख पा रहे थे कितने सारे अपशगुन हो रहे हैं, तो उन्होंने बड़े सारे देख ही लिए थे, तो उनको कहीं ना कहीं था कि क्योंकि नारद मुनि ने बताया था कि भगवान जल्दी जहाँ से जाने वाले हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इंडिकेशन हो चुकी थी कि भगवान पक्का यहाँ से जा चुके हैं। और ये चीज़ अब उनको डिस्क्लोज होगी जब उनने अर्जुन को इतनी उदासीनता में देखा। हाँ, तो उन्होंने बोला कि और कोई कारण तो हो नहीं सकता रिजेक्शन में। So even though he was doubtful about it, he was obliged to inquire frankly from Arjun on the basis of Narada's indication. Though वो doubtful थे, मगर फिर भी उन्होंने, क्योंकि नारद मुनि ने बताया था, तो फिर भी वो अर्जुन से सारे सवाल पूछते हैं। इस प्रकार से हमारा पहले स्कंद का 14वें अध्याय का भक्ति वेदांत पर बड़खम समाप्त होता है यहीं पे, डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो भी आगे बढ़ने से पहले अभी हमारे 14 चैप्टर भागवतम के कंप्लीट हो चुके, फर्स्ट कैंटो के 3-4 चैप्टर और हैं, तो हमारा फर्स्ट कैंटो कंप्लीट हो जाएगा। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। माता जी, why the contact between men and women was allowed, even it was done under regulation, still don't you think it was wrong? I personally felt confused when I heard about Vyasadeva being allowed to contact women of Kuru dynasty. It's natural, माता जी। स्त्री और पुरुष का जो उनका स्वभाव है वो बना ही इस प्रकार से है। इट इज नेचुरल टू बिगेट द प्रोजनी, आगे प्रोजनी बढ़ाने के लिए ये स्वाभाविक है। अभी तुलसी ले लेना, ये स्वाभाविक है, ठीक है। तो स्वाभाविक किस सेंस में, क्योंकि आगे प्रोजनी बढ़ानी है। तो मगर ये अलाउड की गई अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस। भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कामोस्मि मतलब कि धर्म के अनुसार अगर संभोग किया जाता है तो वो मैं हूँ, मतलब कि नियम पालनों के अनुसार, ठीक है। अभी देखिए, बेसिकली द सेक्स लाइफ फॉर द यूनियन इज ओनली फॉर रिक्रिएशन, sorry, for procreation, not for recreation. Means if one want to beget a child, then men and women are allowed to contact. That is also under they should be married, and then once in a while there are principles. सर्वदान संस्कार का नियम दिया गया हमको, ठीक है, कि उसके हिसाब से एक अच्छी संतान आती है गर्भ में, जो कि सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। बट अदरवाइज लाइक नाउ डेज इट गोइंग ऑन, वो तो पूरा काम वासना है, ठीक है, लस्ट है। और जो बच्चे पैदा होते हैं वो सारे रास्कल होते हैं, एक नंबर के। हाँ, कोई धर्म का कोई संस्कार नहीं होते, वो गलत है, ठीक है। जनरली जो लोग सीरियस हैं भक्ति के पथ पर, वो तो इवन दे डोंट इवन गो फॉर बिगेटिंग चाइल्ड, दे फॉलो celibacy. Even the women also, being with the men, they follow proper celibacy. But still it's natural, so it is allowed under rules and regulation. कि लोग नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो नियमों के अनुसार इसको अलाउड किया गया। That is once in a month. So otherwise both husband wife should live together, support each other in Krishna consciousness, कि भक्ति अच्छे से कर सके, हाँ, प्रचार प्रसार कर सके। So that is there. और जैसे अभी इस प्रकार से अलाउड है। और जो आपका आखिरी सवाल था कि व्यास देव जी को क्यों कांटेक्ट करवाया विमन के साथ में, सो देयर वाज अ सत्यवती, ठीक है, जो विचित्र वीर्य की पत्नी थी, उनके आगे 3 बहुएं थी, अंबिका, अंबालिका और अंबा। अब उनके भीष्म पितामह भी पुत्र थे, सॉरी नॉट विचित्र वीर्य, विचित्र वीर्य। तो उनके एक्चुअली जो सत्यवती के पुत्र थे व्यासदेव, और भीष्म भी उन्हीं के पुत्र थे, मगर शी वाज द स्टेप मदर, ठीक है, वो स्टेप मदर थी। तो भीष्म देव को, क्योंकि पहले ऐसा था कि अगर जो भाई, जैसे बड़ा भाई है, 2 भाई हैं जैसे, तो एक भाई अगर मर जाता है तो क्योंकि आगे प्रोजनी चाहिए, क्योंकि कुल में होना चाहिए पुत्र, तो उसके
लिए अलाउड किया जाता था कि अगर अपने ही खून से हो तो बेहतर है कि बाहर से क्यों। तो ब्रदर वाज अलाउड टू बिगेट अ चाइल्ड इन भाभी के उसमें, तो इट वाज अलाउड, ठीक है। मगर कलयुग में ये फॉरबिडन है, क्योंकि कलयुग में लोगों के मॉरल वैल्यूज नहीं है और सारा काम वासना पे बेस्ड है। तो भीष्म पितामह को पहले बोला गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ब्रह्मचार्य का व्रत ले चुका हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता है। सो देन सत्यवती को याद आया कि मेरा तो पुत्र है व्यासदेव, वो भी तो मेरे पुत्र हैं, एंड ही वाज अ ब्राह्मण बिकॉज ही वाज अ सन ऑफ फॉर्म बिगॉट फ्रॉम पराशर मुनि। सत्यवती खुद तो फिशरमैन की बेटी थी, मगर जो पराशर मुनि वो तो ग्रेट ब्राह्मण है, और व्यासदेव वाज अ ब्राह्मण। अब पिता पिता अगर इतना एलिवेटेड है, तो माता के गर्भ में जो पुत्र है वो हाई हाई वैल्यूज वाला होता है। सो दैट्स व्हाई व्यासदेव वाज इनवाइटेड, एंड नॉट जस्ट फॉर द लस्ट, जस्ट टू बिगेट द चाइल्ड। पर्पस पता था, तो उस हिसाब से तीनों के साथ हुआ। मगर उनका संभोग इस प्रकार से नहीं जो नेचुरल होता है, इवन दे जस्ट टच द वीमेन, द चाइल्ड इज देयर इन द वूम। पराशर मुनि ने भी सत्यवती के साथ संभोग नहीं किया था, इट वाज जस्ट ही हग्ड हर, एंड दैट्स हाउ द व्यासदेव वाज बिगॉटन ऑन द वूम, और उनकी वर्जिनिटी बनी रही। सो लाइक दैट वे। तो जो कलयुग में ऐसा नहीं है, कलयुग में ये काम वासना के हिसाब से, और वैसी चीजें यहाँ पॉसिबल है, इसलिए कलयुग में है ये प्रैक्टिस फॉरबिडन है, मगर पहले ऐसे अलाउड था। इवन परशुराम ने 21 जनरेशन क्षत्रिय की खत्म की थी, क्योंकि वो सारे क्षत्रिय क्या था, भूल चुके थे कि धर्म क्या है, कैसे चलना है। तो उन्होंने सारे क्षत्रियों को मार दिया। तो जो उनकी पत्नियां थी, उनका विवाह ब्राह्मणों के साथ हुआ था, क्योंकि क्षत्रिय पत्नी मगर ब्राह्मणों के उच्च कुल के पति के साथ हुआ, सो दैट द नाइस प्रोजेनी विल बी देयर, क्या कि अच्छी जनरेशन आ सके युग में। So in that way, to have a nice progeny, it was allowed. ठीक है? Hope I'm able to clear you, दीपिका माता जी। समझ में आया आपको? यस 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 माता जी, मैं बस ये सोच रही थी कि अगर और कोई इसको पढ़े हु इज नॉट अ डिवोटी, ही माइट मिसअंडरस्टैंड दिस ना। क्या हुआ? क्या कह रहे हो? माता जी, अगर और कोई बाहर से इसको पढ़ेगा जो डिवोटी नहीं है, तो वो मिसअंडरस्टैंड कर सकता है ना इन लाइंस को कि ये तो हाँ, अलाउड था। तभी तो बोला ही है कि भक्तों के संग में पढ़ना चाहिए, जी माता जी। ताकि आपको डाउट्स क्लियर हो। क्योंकि कई ऐसी हाँ चीजें जी। भागवत में हम लोग अपनी छोटी बुद्धि से नहीं समझ सकते, तो इसलिए हम हम्म। भक्तों के संग में उसको समझना चाहिए कि उसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा है। तो कलयुग में कई प्रैक्टिस हैं वो अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है कलयुग में ये सब, ठीक है। हाँ जी माता जी। यस। और किसी का कोई प्रश्न है? ये चैप्टर हमारे खत्म हो चुका है, तो इसी चैप्टर में से किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, एनीवन एल्स? माता जी, यस आस्था। व्यासदेव कृष्णा के मतलब डिपार्चर के बाद में भी जब परीक्षित महाराज हो चुके तब भी थे व्यासदेव? व्यासदेव इज स्टिल अलाइव। व्यासदेव तो अभी भी है, ही चिरंजीवी माता जी। हमारे कई ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं, जैसे विभीषण इज चिरंजीवी, ही स्टिल अलाइव। अच्छा, हाँ। व्यासदेव हनुमान जी इज स्टिल ऑल्सो अलाइव। हनुमान जी इज ऑल्सो हाँ जी, क्या कह रहे हो? हनुमान जी इज ऑल्सो या हनुमान जी इज ऑल्सो चिरंजीवी। यस। और कोई सवाल है आस्था? हाँ, मैंने हम्म? नो माता जी। हाँ। तो कुछ हैं जो चिरंजीवी हैं, तो अभी तक जीवित हैं। हमारे लगा हमें दिखते नहीं, बट दे स्टिल अलाइव, दे स्टिल अलाइव, ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? और कोई? हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज 15th one. Let me give a little introduction. अब ये जो चैप्टर है 15वां अध्याय है, अब क्या है कि अब भगवान कृष्ण, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, धर्म स्थापन होगी, अब कलयुग आने वाला था, द्वापर युग खत्म होने वाला था,
तो भगवान कृष्ण और उनकी यदु डायनेस्टी तो अब खत्म और वो वापस अपना पास टाइम खत्म करके चल जा चुके हैं। अब पांडवों के लिए भी कुछ ज्यादा रहा नहीं था। सो पांडवास दे ऑल्सो थॉट ऑफ डिपार्टिंग नाउ, क्योंकि अब बिजनेस सारा खत्म हो जाए, परीक्षित महाराज हैं तो ही विल टेक केयर नाउ। तो अब आगे पांडव भी धीरे धीरे करके क्या है प्रस्थान करना, रिटायर होने लग गए हैं। यहाँ पे क्या बोला है, सूत उवाच एवं कृष्ण तथा कृष्णो भर्तरा राजना विकल्पिता नाना संकस्पदम रूपम कृष्ण विश्लेषकर्षिता। Sut Goswami said, Arjuna, the celebrated friend of Lord Krishna, was grief-stricken because of his strong feeling of separation from Krishna. Over and above all Maharaj Yudhishthira's speculative inquiries. सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि अर्जुन भगवान कृष्ण के सखा के रूप में विख्यात हर जगह। दो ही वॉज ग्रीफ स्ट्रिकन, क्यों? बिकॉज वो भगवान कृष्ण से बहुत ज्यादा सेपरेशन फील कर रहे थे, so he was strongly feeling that separation. Over and above all महाराज युधिष्ठिर speculative inquiries, और क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भी ऐसे सवाल पूछ रहे थे इतना बुरा हो रहा है, तो अर्जुन बहुत दुखी हो चुके थे। Being too much aggrieved, Arjuna practically became choked up, and therefore it was not possible for him to reply properly to the various speculative inquiries of Maharaj Yudhishthir. तो क्योंकि अर्जुन इतने सेपरेशन में थे भगवान कृष्ण से कि उनका गला एकदम ऐसे चौक्ड अप था, मतलब कई बार हम लोग इतना रोना करते हैं कि हमारी आवाज नहीं निकल पाती, ये ऐसे शोक में चले जाते कि बोल नहीं पाते। तो उन्होंने, और युधिष्ठिर महाराज सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, अर्जुन बिल्कुल उत्तर नहीं दे पा रहे थे क्योंकि भगवान कृष्ण से बहुत ज्यादा सेपरेशन अनुभव कर रहे थे। शोकेन शुष्यत वद्धा हृत्सरोजा हता प्रभा विभुम तम इवानुस्मरणा न शक्नोतो प्रतिभाषितुम। Due to grief, Arjuna's mouth and lotus-like heart had dried up. अब अर्जुन का जो हृदय और मुख है वो सूख गया, इसलिए उनका जो शरीर का जो तेज था वो जा चुका था। Now remembering Supreme Lord, he could hardly utter a word in reply. अब भगवान को याद करते हुए वो हार्डली एक शब्द भी बोल पा रहे थे, कुछ भी नहीं बोल पा रहे। देखो ये शुद्ध भक्त होते हैं। कृच्छ्रेण संस्तभ्या शुचा अनिनामृत्य नेत्रयो परोक्षेण समुनाधः कन्यानो कंठकात्रः। With great difficulty he checked the tears of grief that smeared his eyes. He was very distressed because Lord Krishna was out of his sight, and he increasingly felt affection for him. With great difficulty he checked the tears of grief that smeared his eyes. बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोक पा रहे थे, हाँ, बिकॉज वो बहुत दुखी थे, भगवान कृष्ण को अब नहीं देख पा रहे थे वो। he increasingly felt affection for him. अब कहते हैं सेपरेशन में हमारा क्या होता है, प्रेम और बढ़ जाता है। He was feeling more affection for Krishna but not able to see him in front. अपने आंखों के समक्ष देख नहीं पा रहे थे, तो अपने अश्रुओं को भी रोकने की कोशिश तो करते पर रुक नहीं रहे थे। साख्यम मैत्रीम सौहृदम च सार्थ्यादिषु संस्मरन् निर्भमाग्रजम् इति अहा अश्पागता गिरा। Remembering Lord Krishna and his well-wishes, benefactions, intimate familial relations, and his chariot driving Arjuna, overwhelmed and breathing very heavily, began to speak. अब अर्जुन जो है सब याद कर पा रहे हैं किस प्रकार कृष्ण के साथ उनका एक अच्छा रिश्ता था, उनके सारथी बने, मतलब बहुत हैवी हो चुके थे और वो बोलना शुरू किए। The supreme living being is perfect in all relation with pure devotee. तो भगवान जो है भक्तों के साथ हर संबंध में निपुण होते हैं। So Arjun is one of the typical pure devotee of Lord, reciprocating in fraternal relation. एक तो उनका रिलेशन था क्योंकि बुआ के बेटे थे भगवान, and Lord dealing with Arjuna was displayed, और उनकी मित्रता थी। He was not only well-wisher of Arjuna, मगर उनके बेनिफिशियर भी थे। और ज्यादा गहरा संबंध बनाने के लिए भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा का उससे विवाह भी करवाया, उनके सारथी बने। हाँ, in order to protect his friend from war,
लॉर्ड बिकम एक्चुअली हैप्पी व्हेन ही एस्टैब्लिश्ड पांडवा, और भगवान बहुत प्रसन्न थे जब उन्होंने पांडवों को फाइनली कहाँ है राजगद्दी पे बिठाया था। तो अर्जुना को ये सब चीजें याद आ रही थी एंड बिकम और ओवरवेल्म्ड हो रहे थे इन विचारों से। ऐसा होता है ना जब कोई व्यक्ति हमारे समक्ष नहीं होता है तो उसको हम हर चीज याद करते हैं, उसके साथ बिताया हुआ समय, उसके साथ एक एक पल हमें याद आता है। वो याद कर करके हम और ज्यादा दुखी होते हैं कि अब वो व्यक्ति का हम संग नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि देखिए अगर कोई सच में एक प्रेम संबंध में है तो वो उसको याद कर पा रहे, क्योंकि अब हम लोग भी कलयुगी हैं, हमारा भी भगवान के साथ संबंध है, मगर हम इतनी अज्ञानता में है कि हमें कुछ भी याद नहीं और हम याद करने की कोशिश भी नहीं करते। याद करने की कोशिश कैसे करना? भगवान के बारे में पढ़ना, भक्तों के संग उनका स्मरण करना, चिंतन करना, जप करना, कीर्तन सुनना, तब हम उसको क्या स्मरण कर पाएंगे, तब वो एक आनंद का अनुभव कर पाएंगे। हमें आनंद क्या दुख क्या कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हम याद ही नहीं करते, और याद क्या है हम उसको समझने का प्रयास भी नहीं करते। तो देखिए शुद्ध भक्तों के ऐसे चरित्र को पढ़ के हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से भगवान को जो थोड़ा सा सेपरेशन है उनको कितना दुख में वो डाल दिया, और किस प्रकार भगवान का संबंध है, किस प्रकार से वो रेसिप्रोकेट करते थे अपने भक्तों के साथ में। ऐसा नहीं कि भगवान हमारे साथ वैसा संबंध नहीं स्थापित करेंगे, मगर आप ये भी तो देखो आप अपने हिसाब से कितना कर रहे, हाउ मच यू आर डूइंग फॉर लॉर्ड दैट ही रेसिप्रोकेट्स विद यू। क्या आप भगवान के साथ प्रेम संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप उनके बारे में श्रवण करते हैं, उनके बारे में बात करना पसंद है? क्या हरिनाम करने में रुचि लेते हो, कीर्तन करने में रुचि लेते हो, भक्तों के संग में रुचि लेते हो, भागवत श्रवण में रुचि लेते हो? तो ये हमें लेना है, देन वी आर एबल टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन विद कृष्ण, तब हम भगवान के साथ वैसा संबंध स्थापित कर पाएंगे। खैर हमारे पास अभी 3 मिनट ही रह गए हैं, तो ये नया चैप्टर हम लोगों ने आज शुरू कर दिया है, सो टुमारो विल रीड मोर। तो 5वां श्लोक इसका कल हम लोग शुरुआत करेंगे। तो अभी के लिए किसी का कोई जल्दी से कोई सवाल हो तो मैं ले सकती हूँ, कुछ नहीं है तो यहीं पे से विराम लेंगे। हरे कृष्ण। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? और इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट कि सभी लोग सुबह जबा सेशन में आने का प्रयास कीजिए। और पूजा माता जी, गीता माता जी, वास्ता माता जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने आए। तो इट्स गुड, बेशक 3:30 ही ज्वाइन करो, मगर करो तो सही, ठीक है, बिकॉज साथ में जब करना आसान है। सॉरी मैं अनम्यूट पे थी बिकॉज मेरा गला चल नहीं रहा है, सो आई एम ऑन लिटिल बिट वॉइस रेस्ट। सो अगर साथ में आना अच्छा है, ठीक है, तो प्लीज कम, और इवनिंग कम फॉर द भगवत गीता, क्योंकि लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा है तो खत्म होने वाला है, तो प्लीज उसके लिए जरूर आइए। और यस, किसी को कुछ कहना है अभी? हरे कृष्णा। Yes, any questions or comments or any realization? चलिए कुछ नहीं है तो हम लोग यहीं पे माता जी। समय हो चुका है, तो कल हम लोग 5वें आस्था, यू वांट टू से समथिंग? मैं कह रही थी कि मुझे नहीं पूछना है, क्या हुआ बोलो? नहीं पूछना है। अच्छा नहीं पूछना, ठीक है, फिर यहीं पे विराम लेते हैं। तो लेट्स चैंट इट एंड हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। भागवतम की जय। श्री कृष्ण अर्जुन श्रीपाद की जय। All the somebody would. Thank you so much. See you all in the evening for Bhagavad Gita class. तो शाम को आपको मिलते हैं भगवद गीता के लिए। So thank you so much and chant your out nice. हरे कृष्णा everyone. हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई प्रश्न है आप अभी नहीं पूछ पाए हैं तो आप लोग मुझे WhatsApp पे भी मैसेज कर सकते हैं। I will try to answer them during the class. ठीक है? हरे कृष्णा everyone.